Today I am going to deliver a session on operating system and the topic is paging. So students, so what is paging is all about? So before paging, we need to understand some few terms that we usually see in paging. So there are few terms as you see. So as we know, if you see the computer memory hierarchy, so we have secondary memory, we have main memory, we have cache memory. So in operating system, what we used to say is, suppose if you take your secondary memory, we call secondary memory a new name by it is called as LAS. So what is LAS means? It is nothing but secondary memory. Okay. So it is logical address space. Done. Similarly, we have main memory. It is also known as RAM. So it is also known as PAS. So we call main memory in OS as physical address space. So it's clear. Now we are going to discuss how we can access these memory locations for our program execution. So look at here in this slide. So here you can see. So logical address space is also known as LAS. That is also known as your secondary memory. Physical address space is also known as your main memory or RAM. So how to access this address, this space, this memory? So we have logical address to represent to access the logical address space. We have physical address also known as PA to access the physical address space. Now the next very important thing is how do we represent these addresses in memory location. So if you say logical address space or physical address space, they are represented in bytes or in words. Okay. Similarly, logical address and physical address, they are represented in bits. So these 2 points must be clear. So let's understand these examples on how we are converting one address to another address. Before this, I need to explain you some examples of some tips. So look at here. Suppose LA is 37 bits. We know LA, what is LA means? Logical address. It is represented in bits. Yes. So 37. So what is LAS? So LAS we will find with 2 raised to power 37 and how we are representing bytes or word. So it is 2 raised to power 37 word. So what is 2 raised to power 37 means? We can break this term. We can break this term by writing 2 raised to power 37. We can write as 2 raised to power 7 into 2 raised to power 30. 2 raised to power 7 into 2 raised to power 30. Yes or no? Yes. So what is 2 raised to power 7 means? It is 128. That we must know. And what is 2 raised to power 30? It is your giga. So it will be 128 gigawords. Similarly, we have, suppose reverse question is given. LAS is given 64 megawatt. Then how we can find LA means? Just we need to do the reverse process. What is we can write this 64 as 2 raised to power 6. Yes or no? Yes. This m we can write as 2 raised to power 20. So remember 2 raised to power 10 is 1k, 2 raised to power 20 is your 1m, 2 raised to power 30 is your 1g, and similar 2 raised to power 40 is your 1t terabyte. So it is combining these two, it will become 2 raised to power 26. So what is the power we got? 26. Yes. So answer is 27 bits. Clear? Similarly, you can find PA and PS also for other examples. Now before this, we'll see one examples here. Suppose there are 2 empty space I have given you. We have 2 empty space. Okay. So you have options, suppose 0 and 1. We have only 2 bits, zeros and ones. So question is, in how many ways can you fill these 2 gaps with the help of these 2 bits? So how will you fill this gaps means? You will say, sir, we can write it is 0 0. Yes, it's also correct. Sir, we can write 0 1. Yes, it's also correct. Sir, can we write 1 0? Yes, it's also correct. Sir, can we write 1 1? Yes. So if you see here, to fill these 2 gaps, okay, and we have 2 bits, zeros and ones, so we can do this in 4 different combinations. So if we have 2 gaps, we have 2 bits, so we can fill this 2 gap in 4 different combinations. So what does this scenario tells us? These are the basic examples. So how we can take this example? So similarly, it is your LAS. Okay, LAS. Okay. So LAS. Suppose so for 2 bits, how many combinations we got? 2 raised to power 2. That is 4. Yes or no? 4 combinations. So total space we got is 4. So we can match this this scenario, this example with our given examples.
Okay, so using the same concept that we have studied, how to fill these two gaps with the help of these two bits, the same concept we can apply here also. So given LA, how we can find LA means 2 raised to power 27. So answer is 128 gigahertz. So next very important thing is, sir, how can you say how LA and PS are, can you compare these two address or not? So answer is yes, we can compare. How we can compare? So listen here. We know we have your secondary memory, yes or no? We have your main memory, yes or no? So tell me, if you compare the size, or so which size is smaller? We have main memory as less size as compared to your secondary memory. So in order to access any bit, any address of this secondary memory, we need more bits, yes or no? Yes. In order to access any location of this main memory, we need less bit because its size is less. So in order to access second memory, which address we have used? LA, because second memory is also known as LAS. It's clear? So in order to access main memory, which address we have used? PA. It's called as physical address. So main memory is also known as PAS. So we can say, as we know ki second memory has more size as compared to main memory, so LA will always be greater than your PA. So remember the important formula. The size of logical address will always be greater than the size of physical address. This question is asked in many times in interview. So answer is, we can compare, you can say answer in terms of memory address. It's clear? So this is the point. So next we will see one example of paging. What is paging all about? There will be a diagram that will tell us how paging it works, and we'll see one sample example. Okay, that we'll see. Okay, good morning to all. So in today's lecture, we'll study how paging works. We'll see this diagram. We'll understand this diagram of paging, and then we'll see one example, one simple example of paging, and later on we'll see what is the drawback of paging. Okay, now listen here. So as we know, we have two types of memory. We have LAS, we have PS. LAS is your secondary memory, PAS is your physical, your main memory. सो वी हैव डिवाइडेड, हमें पता है हमारे प्रोसेस, हमारा प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? LAS में होता है, ठीक है। हमने इस LAS को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड किया, तो इसको हम बोलेंगे पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, क्लियर? हमने वैसे ही जैसे हमने इसमें पेजेस में डिवाइड किया, सिमिलरली वी हैव डिवाइडेड PAS आल्सो इनटू इक्वल साइज फ्रेम्स, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। नाउ वी आर लोडिंग द पेज फ्रॉम LAS टू PS। हमें LAS से PS में लाना है लोड। ये लाना क्यों है? लेट्स सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि सर हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया, हाँ जी। हमने LAS में हमने PS को फ्रेम से डिवाइड कर दिया, यस। हमने कौन सा पेज प्रोसेस का किस फ्रेम में स्टोर किया, तो हमें कौन बताएगा? इसके लिए हमने अलग से एक टेबल मेंटेन किया है, इसको बोलते हैं पेज टेबल। द टेबल जो हमें पेज का इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। नाउ हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स? सो लिसन हियर। वी नो CPU, इसने एक किसी गिवन पेज का रिक्वेस्ट किया, तो वी नो कि द एड्रेस जनरेटेड बाय CPU इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। हमें CPU को यह नहीं पता कि आपने बीच में फिजिकल मेमोरी या कैश मेमोरी रखा है। CPU को केवल इतना पता है कि उसके पास सेकेंडरी मेमोरी है, तो उसने LA जनरेट किया इन ऑर्डर टू एक्सेस द लोकेशन ऑफ LAS, ठीक है ना। हमने LAS को दो पार्ट में डिवाइड किया है। हमने LA को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लॉजिकल एड्रेस को, P एंड D। सो व्हाट इज P एंड व्हाट इज D? सिंपल। P हमें बता रहा है कि CPU अभी किस पेज का रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पेज नंबर बताएगा आपका P। उस गिवन पेज में कौन सा वर्ड नंबर, कौन सा इंस्ट्रक्शन नंबर चाहिए, वो बताएगा आपका D। तो हम इसको बोलते हैं पेज ऑफसेट, पेज नंबर, योर पेज ऑफसेट, क्लियर? नाउ सिमिलरली वी हैव PA आल्सो। PA डिवाइड होगा आपके दो पार्ट्स में, F एंड D। F बताएगा फ्रेम नंबर एंड D। तो सर में पेजिंग कहाँ है? पेजिंग कॉन्सेप्ट है कहाँ पे? हमने LAS को इक्वल साइज पेज में डिवाइड किया है, यस। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो हमने LA को PA में कन्वर्ट किया है, इस टेक्निक को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं पेजिंग, ठीक है। अब से कैसे काम करता है देखिए आप। कौन सा रिक्वेस्ट आया? पेज नंबर क्या है? 3। तो पेज 3 पर हम पेज टेबल में देखेंगे, तो पेज टेबल, हाँ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पेज टेबल में कितने एंट्रीज होनी चाहिए और पेज टेबल कंटेंट क्या करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देख सकते हो हमने LAS को किस में डिवाइड किया है? सर हमने LAS को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड किया है कि नहीं? यस। तो आपका पेज टेबल में जितने आपके LAS में पेजेस होंगे, लिसन हियर, जितने आपके LAS में पेजेस होंगे उतने ही आपके पेज टेबल में एंट्रीज होंगे। तो हमने कितने इसमें डिवाइड किए?
पेज कितने पेज में डिवाइड किए, टोटल 8, तो इसमें भी 8 एंट्रीज है 0 से लेकर 7। ये बता रहा है पेज नंबर, ठीक है। ये पेज अब किस फ्रेम में स्टोर्ड है, तो रिमेंबर पेज टेबल कंटेन्स फ्रेम नंबर, ठीक है। कौन सा पेज किस फ्रेम में स्टोर्ड है। नाउ लिसन, तो पेज 3 का रिक्वेस्ट आया तो हम 3 में सर्च करेंगे टेबल में, सीधा पहुंच गए 3 में एक्सेस किया, तो ये हमें बताएगा कि पेज 3 फ्रेम 10 में स्टोर्ड है, तो हमने यहाँ पे ले लिया फ्रेम नंबर, क्योंकि हमें पता है कि डी पेज ऑफसेट चेंज होगा नहीं LA से PA में, तो जो 10 बिट्स है वही हमारा 10 बिट्स यहाँ भी है, ठीक है। तो ये हमें बताएगा फ्रेम नंबर, तो फ्रेम 2 में आपका पेज 3 स्टोर्ड है, तो फ्रेम 2 में हम गए, कहाँ पे गए, LA आपके PAS में, और हमने वहां पे गिवन जो भी पेज था उसका 10th, रिमेंबर इसका मतलब क्या है 10 का मतलब, इस पेज 3 का सॉरी पेज इसका हम कोई गिवन वर्ड लेंगे 10th वर्ड, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, P क्या बताता है, पेज नंबर, हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज ऑफ ए LAS, ठीक है। और D हमें बताता है पेज ऑफसेट। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस एग्जांपल सिंपली लर्न वन थिंग, 2 इज पावर 10 को हम बोलते हैं 1K, एज यू नो, 2 इज पावर 20 को हम बोलते हैं 1M, एंड 2 इज पावर 30 को हम बोलते हैं 1G। इट विल हेल्प व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। सिमिलरली वी कैन से आल्सो 2 इज पावर 40 को हम बोलेंगे 1 टेराबाइट, ठीक है। सो लिसन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन बता दीजिए एक बार, ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, LA दे रहा है 27 बिट्स, यस, PA दे रखा है 21 बिट्स, यस, पेज साइज हमें दे रखा है 4 किलो वर्ड। पूछा गया हमसे नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स। अब आप मुझे बताइए बच्चों, आपके LAS में कितने पेजेस होंगे, कैसा पता लगेगा। LAS के जो साइज है, टोटल साइज को आप डिवाइड करोगे पेज साइज से। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका पेज साइज है ना वही आपका फ्रेम साइज होगा। ऐसा क्यों है, क्यों हम पेज साइज और फ्रेम साइज को इक्वल रखते हैं, व्हाई वी मेक पेज साइज एज इक्वल एज फ्रेम साइज। द सिंपल फंडा इज when we are loading the page from LAS to PAS, ताकि हमारा जो जितना पेज साइज LAS में लगा उतना ही पेज साइज यहाँ पे लगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इससे क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। कहाँ होगा, आपका PAS में। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हमने पेज साइज और फ्रेम साइज को इक्वल रखा है, ठीक है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, नंबर पेजेस पूछा है, आप बताइए कि नंबर पेज कैसे निकलेगा। टोटल LAS को डिवाइड करोगे आप पेज साइज से। वैसे ही आप नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे आप बताओगे, सर PS का साइज ले लो, उसका डिवाइड करिए कितने फ्रेम्स, फ्रेम साइज से, ठीक है। सो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व आल्सो। LA कितना बिट है, 27 बिट, तो हम LAS कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। LAS हम निकालते हैं 2 रेज़ टू पावर LA कर दो, क्या कर दो, 2 रेज़ टू पावर LA। तो ये सिंपली हम इसको देख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 27 किया, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये कितना आएगा 128 MW, ठीक है। तो हमने LAS आ गया, तो हम LAS के हेल्प से नंबर ऑफ पेजेस निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे। सो स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर आप LAS को डिवाइड करिए पेज साइज से। तो LAS गिवन है, सर LAS तो गिवन नहीं है, तो हमने LAS फाइंड कर लिया था 2 इस पर LA करके, तो हमारा आंसर कितना आया था 128 MW आया था। अब पेज साइज सर गिवन है, हाँ सर पेज साइज गिवन है 4KW, उसको हमने इससे डिवाइड किया, तो हमें आंसर मिला 32K। तो 32K आपका हो गया नंबर ऑफ पेजेस LAS में। अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे, सर नंबर ऑफ फ्रेम्स पूछा है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कहाँ होते हैं, सर PS में होते हैं। तो हमें क्या बताना चाहिए, PS का साइज एज वेल एज फ्रेम साइज, ठीक है। तो PS गिवन है, सर PS तो गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे आप, PA तो गिवन है, तो 2 रेज़ टू पावर 21 करिए आप, तो आपको PAS का साइज आ जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 21 किया तो PAS आ गया, तो इसके 2 रेज़ टू पावर 2 आपका ये 2 रेज़ टू पावर 21 का आपका हो जाएगा 2 MW, ये आपका PS आ गया, ठीक है। अब आप PS को डिवाइड करिए फ्रेम निकालने के लिए फ्रेम साइज से, तो फ्रेम साइज तो गिवन है क्वेश्चन में, सर फ्रेम साइज गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे सिंपल तरीका क्या है, पेज साइज आपका फ्रेम साइज होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो आप 4KW आपका फ्रेम साइज हो गया, तो हमने इसको डिवाइड किया, तो हमें आंसर फाइनल आंसर में मिला 512, तो 512। तो नंबर ऑफ पेजेस हो गए आपके 32K और नंबर ऑफ फ्रेम्स हो गए आपके 512, ठीक है। नाउ जस्ट 1 मिनट, इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं हम। आप लोग बताइए इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, ठीक है। नाउ टेल मी, सो पेजिंग में हमने क्या किया, हमें कुछ पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये है कि सर ये पेज टेबल कहाँ स्टोर होता है, ये क्वेश्चन है। सर हमने तो बोल दिया PS आपका मेन मेमोरी है, LAS आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो ये पेज टेबल हम कहाँ स्टोर करते हैं,
क्या हम इसको एलियास में करते हैं कि पीएस में करते हैं? तो आंसर इज हम वी स्टोर दिस पेज टेबल इन द पीएस, फिजिकल एड्रेस स्पेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर पेज टेबल क्या एक प्रोसेस का होता है? क्या पेज टेबल सभी प्रोसेस का होता है अपना अपना? तो आंसर इज यस, पेज टेबल इज मेंटेन फॉर एवरी प्रोसेस। रिमेंबर, हर एक प्रोसेस का, जितने भी आपके सिस्टम में प्रोसेस हैं, सभी प्रोसेस का इंडिविजुअल पेज टेबल होगा, ठीक है। फॉर एवरी प्रोसेस वी आर मेंटेनिंग ए पेज टेबल। अब जैसे जैसे आपके सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, वैसे आपको हर प्रोसेस का पेज टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एक ओवरहेड है, क्योंकि हर प्रोसेस का एक पेज टेबल होगा। तो जितने प्रोसेस आपके सिस्टम में है, सपोज 100 प्रोसेस है, तो पेज टेबल कितना होगा? 100। तो 100 पेज टेबल को मेंटेन करना कि कौन सा पेज किस फ्रेम में है, इट इज ए ओवरहेड। तो पेजिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मेंटेनिंग द पेज टेबल इज एन ओवरहेड। तो इसी का हमने मॉडिफाइड वर्जन लिया है, दैट्स कॉल्ड मल्टी लेवल पेजिंग, और वी हैव इन्वर्टेड पेजिंग आल्सो। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑन पेजिंग। सो पी इज योर पेज नंबर, डी आपको बताएगा फ्रेम नंबर, डी आपको बताएगा पेज ऑफसेट, एफ बताएगा फ्रेम नंबर, और डी आपको बताएगा योर पेज ऑफसेट। क्लियर? सो LA to PA को हम बोलते हैं पेजिंग। ये आपका पेज टेबल हो गया, और ये हमने इसको ऐसे सिंपली वे में सॉल्व किया। तो इसको फॉर मोर एग्जांपल्स आप पेजिंग में देख सकते हो, और हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे मल्टी लेवल पेजिंग क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एग्जांपल पेजिंग वी आल्सो सी, फिर हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड पेजिंग क्या होता है, और पेजिंग के फाइनल ड्रॉबैक के बाद हम आएंगे सेगमेंटेशन में। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑन पेजिंग। ओके, थैंक यू।